Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are well, fit and healthy. So student, I am teaching you. Today date is 18/8/2020. I am teaching you chapter number 12, air, water and weather. Okay. So student, before watching the video, take out your book, open page number 73 and take one rough copy with you, so that and note down the so that you can also note down the important points from the board also, and if there is any confusion you can ask in online doubt session. Okay, so all of you open page number 73. Let's do little recapitulation of the topics which I explained you in the previous video, and after that we will discuss the new topic. Okay, so okay, now let discuss what is hail. So student, have seen many times, or you have seen that sometimes you have seen, especially in that the ice which is coming from the clouds. ठीक है, तो what is hail? First of understand this, what is hails. So how the clouds are formed. ठीक है, clouds कैसे form हुए. See, due to the sunlight, due to the heat of the sunlight, what happens? The water evaporates. So what does it mean? It means that the water changes in the form of a vapor, and vapor form of the water is known as what? Water vapor. So student, when the water change in the form of a vapor, it means we know that there are three states of water: solid, liquid and gas. It means when the water evaporates and it change in the form of a water vapor, so in which state is water now? It is in the form of a gas. ठीक है, it is in the form of a gas. Now student, what happens? Try to understand. When this warm air, when it change in the form of a gas, it become very light. So this warm air rises up. ठीक है, warm air rises up, and when it come in touch with a cold air, then what's happened? This water vapor become cool. ठीक है, जब ये कोल्ड एयर के टच में आए तो ये वाटर वेपर क्या हो गए? कूल हो गए. सो व्हेन इट कूल, इट अगेन चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर. जब ये वाटर वेपर कूल होंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा? इनका वाटर. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. And this process is known as condensation. Okay, so these small tiny drops of a waters join together to form the clouds. ठीक है, इस तरह क्या फॉर्म होते हैं? क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. ओके, एंड व्हेन these small drops of water become very heavier, क्योंकि इवापोरेशन की प्रोसेस रुक तो रही नहीं है. सो एंड द क्लाउड्स आर अनेबल टू, इतने ज्यादा वो हैवी हो जाएंगे कि उनका वेट इतना एक्सेस हो जाएगा. सो व्हाट हैपन? दे स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ ए रेन. ठीक है, तो वो किस फॉर्म में? फिर से लैंड पे वापस आने लगते हैं रेन फॉर्म में. इज इट क्लियर? तो ऐसे रेन होती है. बट नाउ एट द सेम टाइम स्टूडेंट, if the air around this cloud is very cold, is it clear? So especially you will see this type of thing in the mountains area. ठीक है, पहाड़ों पे आपने देखा होगा, पहाड़ों पे बहुत बर्फ गिरती है. ठीक है, तो वहां पे जो
माउंटेन्स एरिया पे होगा, जब क्लाउड्स के अराउंड द क्लाउड्स, जो क्लाउड्स फॉर्म हुए हैं, so if the air around these clouds is very cold, then what happen, these small small drops of a water क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं. इज इट क्लियर? दीज ये क्या है, जैसे बहुत ठंडे हो जाएंगे, बहुत ठंडे हो जाएंगे जब इनका टेम्परेचर 0, क्योंकि 0 डिग्री या उससे लेस पे वाटर किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइस बोलते हैं. किसको क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं. तो ये किस फॉर्म में हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे. इट फ्रीज इन द फॉर्म ऑफ ए स्नो. अब या तो और, ठीक है. सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज हेल. हेल को यू कैन आल्सो से इन हिंदी ओला गिरना. ठीक है, गोल गोल बर्फ के टुकड़े कभी देखें क्लाउड से गिरते हुए, आपने ऑब्जर्व किए कि बर्फ के गोल गोल टुकड़े आ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द क्लाउड्स. एंड वेन एवर यू सी हेल, विद द हेल यू विल सी रेन आल्सो. ठीक है, जब भी आप देखोगे कि बर्फ के गोले, ठीक है, क्लाउड से ऊपर से, आपने कभी देखा होगा कि बहुत बारिश भी हो रही है, बहुत सी बर्फ भी गिर रही है. ठीक है, स्मॉल स्मॉल आइस पीसेस आर फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड. इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेल बोलते हैं. व्हाट वी से, हेल. हिंदी में क्या बोलते हैं, ओला गिरना. सो वेन एवर यू विल सी द हेल, यू विल ऑब्जर्व द रेन आल्सो. अब हेल और रेन एक संग कैसे हो रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक, अराउंड द क्लाउड्स द एयर इज वेरी कोल्ड, दैट इज द रीजन जो वाटर के ड्रॉप थे, दे फ्रीज एंड फॉर्म द स्नो एंड आइस क्रिस्टल. बर्फ के टुकड़े बन गए ऊपर. ठीक है, जब इनका वेट बहुत ज्यादा हो गया तो दे स्टार्ट कमिंग डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ ए हेल. और मैंने बोला व्हेन एवर यू सी हेल यू विल सी रेन आल्सो. देखो रेन उस समय कैसे होती है, मैं ही आपसे कह रहा हूं कि इतना ज्यादा टेम्परेचर कूल हो गया कि वो तो बर्फ की तरह जम गए. तो फिर जब बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं ऊपर क्लाउड से, तो मैंने कहा जब भी हेल गिरेगी, हेल ओले गिरेंगे, तो बारिश जरूर देखने को मिलेगी. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, कि वेन एवर देर इज ए हेल यू विल सी रेनफॉल ऑल्सो. रीजन ये होता है बेटा, इट इज when these pieces of what ice they are coming from the clouds. जब ये clouds से नीचे आने लगते हैं तो at the place near the clouds temperature is very less. तभी तो वो लोग फ्रीज होके सॉलिड हो गए, आइस फॉर्म में चेंज हो गए. इज इट क्लियर? जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन यू. यू ओपन योर रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में एक फ्रीजर होता है जिसमें we put the water and after 2-3 hours we observe it changed in the form of a solid ice. Okay, and if you put that solid pieces of ice in the open, after some time you will see they change in the form of a liquid. क्योंकि inside the refrigerator temperature रहा होगा 0 या उससे less रहा होगा, then it is in the form of a solid. And when you put it outside the refrigerator, their temperature is high. And then what happened? It start melting. ठीक है, जो पहाड़ों पे जो ग्लेशियर होते हैं उन्हीं से ना नदियां बनती हैं. तो जब गर्मी के दिन आते हैं, ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन, व्हेन द स्नो मेल्ट, सो स्नो के मेल्ट होने से जो वाटर होता है उसी से हिमालयन रिवर्स फॉर्म होती हैं, उसी से हिमालयन रिवर्स फॉर्म होती हैं. इन द सेम मैनर व्हेन द हेल इज कमिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, सो व्हेन दे coming from the cloud, it means that they are coming from the clouds towards the land. तो जब वो लोग लैंड के, क्योंकि क्लाउड्स के पास टेम्परेचर क्या था, बहुत कोल्ड था, that is the reason they are in the form of a ice. And then when they are coming towards the ground or to the land, then what's happened, warm air के टच में आके टेम्परेचर क्या, जब टच में ये आइस पीसेस आए तो ये भी मेल्ट करने लगे. Is it clear? So that is the reason you see rain with the hail. जो pieces small होते हैं वो melt कर जाते हैं. ठीक है, so they come on the land in the form of a rain.
अगर हेल के संग अगर जिस समय ओले गिरते हैं, अगर बारिश हो रही है, यू यू फील दैट वाटर विद द हैंड से आप उस वाटर को टच करना, वो बड़ा कोल्ड होगा। ऐसे रेन होती है उसका वाटर उतना कोल्ड नहीं होता, लेकिन जब हेल होगी, बर्फ के टुकड़े गिरेंगे और उसके संग अगर रेन होगी तो वो वाटर बहुत कोल्ड होता है। रीजन क्या होता है? दैट वाटर इज आल्सो आइस, बट इट मेल्ट। वो क्या हुआ? मेल्ट कर गया। तो जो पीसेस स्मॉल पीसेस थे वो मेल्ट करके क्या बन गए? आपके रेन बन गए। और जो पीसेस पूरे मेल्ट नहीं हो पाए वो एज ए हेल दे कम ऑन टू द ग्राउंड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद फिर ड्यू डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, व्हाट इज ड्यू? रात के समय आप लोग देखते हो विंटर्स में, मॉर्निंग में ऑब्जर्व करते होगे कि पूरा जहां भी ग्राउंड देखो अपने सराउंडिंग्स में, जैसे लगता है स्मॉल 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 लगता है रात में बारिश हुई थी। ठीक है, सारी चीजें वाटर से कवर रहती हैं। ऑल द थिंग्स आर कवर्ड विद द वाटर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ड्यू। ये क्या है बेटा? दिस इज ड्यू। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दीज ड्यूज आर फॉर्म। ये ड्यू कैसे फॉर्म होती है? ठीक है, सो first I read it and then I explain you once again. If it turns chill at night, water vapor in the air condenses as air touches the cold surface. Okay, this is called it dew. In the morning you will find the ground, leaves, car surface extra covered with a dew. देखो what's happen in the winter, क्या होता है? when the at the time of a night, ठीक है, ठंड हो जाता है। क्या होता है? एट द टाइम ऑफ ए नाइट ड्यू टू कूल एयर्स, ठीक है, क्या होता है? जो सरफेस है, जो इधर जितने भी सरफेस है वो क्या हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और हमें पता है कि वाटर वेपर इज आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है। ओके, व्हेन द नाइट इज वेरी चिली, मतलब बहुत ठंड है, तो जितनी भी चीजें आसपास की हैं वो भी तो बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, कभी आपने ऑब्जर्व किया विंटर ठंडे के दिन में अगर आप किसी भी चीज को टच करो तो उसका सरफेस भी ठंडा लगता है। ठीक है, जैसे हॉट के समय व्हेन इट इज वेरी हॉट, एट दैट टाइम बाइक इफ योर बाइक और योर बाइसाइकिल इज स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, आप उसको जैसे हैंड से टच करते हो तो लगता होगा और ये जल गया हाथ, लगता है ना? ड्यू टू यू फील द हीट ऑफ द सनलाइट। Is it clear? In the same manner, when it is very cold, so the things around the things which are present, they also become, उनका surface भी क्या हो जाता है? Cool हो जाता है। So when we know that the water vapor is present in the air, तो जब ये water vapor इस cold surface के touch पे आता है, किसी का भी surface हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है, ठीक है, रोड भी है, लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स, किसी के भी सरफेस पे हो सकता है। इज इट क्लियर? सो व्हेन दीज वाटर वेपर टच द सरफेस, कोल्ड सरफेस, तो ये वाटर वेपर क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। अब यहां कौन प्रोसेस हुई बेटा? कंडेंसेशन। because when the water vapor cool and it change in the form of a water, this form is known as कंडेंसेशन। तो जब वाटर वेपर था, वाटर वेपर कैसे बना होगा? वो व्हेन द वाटर बिकम हीट, सो होल सरफेस दैट इज कूल in winter, so these water vapor when come in touch of any surface, then it cools, और cools हो गया मतलब कंडेंसेशन हो गई, cools हो गया तो वो वाटर वेपर किस फॉर्म में चेंज हो गया? वाटर फॉर्म में चेंज हो गया। दिस इज द रीजन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी से इट एज ए ड्यू। हम इसको क्या बोलते हैं? ड्यू। इसलिए मॉर्निंग में जब भी हम देखते हैं पूरा सरफेस हमें लगता है कि पूरा वाटर लगता है ना, तो लगता है जैसे बारिश हुई है, लेकिन ये क्या है? ड्यू है। दिस इज नोन एज ड्यू विच यू आर एबल टू ऑब्जर्व इन अ विंटर डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग को पढ़ाते हैं फॉग।
देखो fog, is it clear? Now see student, what is fog? When warm air and moist air cools rapidly, teeny water droplets of water are formed and they stay in the air. Is it clear? This is fog. Fog is thickest in valleys and low-lying area. Fog occurs in winter season. ठीक है. अब देखो what is the reason? जो fog, जो how fog is formed, that reason is very similar to which? How to water cycle. ठीक है. Now I explain you, then you will able to understand. देखो what happens in the water cycle, इसीलिए मैंने बोला था water cycle पहले explain करेंगे, then these things you will able to understand more clearly. ठीक है. अब देखो होता क्या है इन अ वाटर साइकिल, आई एक्सप्लेन यू, ड्यू टू द सनलाइट, ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन वाटर इवेपोरेट्स. What does it mean? Due to the heat of the sun, water change in the form of a water vapor, because boiling point of the water is 100 degree Celsius. This is the I short form, I write BP. Boiling point of water is 100 degree Celsius. Boiling point of water is, don't be confused, BP means boiling point of water is 100 degree Celsius. Okay. And after that what happens student? When the water change in the form of a gas, it means what I am talking about, water vapor. ठीक है. When the water vapor changes in the form of a gas, then what happen? It become very light. It become very light, बहुत हल्का हो जाता है. And what happen? It वार्म एयर राइजेस अप, वार्म एयर ऊपर चली जाती है. और बहुत हाइट पे जाने के बाद जब वार्म एयर कोल्ड एयर के टच में आती है, देन व्हाट्स हैपन? वाटर वेपर स्टार्ट कूलिंग. वाटर वेपर स्टार्ट क्या हो जाते हैं? कूल होने लगते हैं वाटर वेपर. इज इट क्लियर? वाटर वेपर स्टार्ट कूलिंग एंड अगेन दे चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर, एंड दीज स्मॉल tiny drops of a water join together to form the clouds. यही बात आप लोगों को बताई थी ना. अब देखो now what's happened? This fog you will observe in winter. कब इसे ऑब्जर्व करोगे? विंटर में. ओके. अब देखो इसमें क्या होता है, when the warm air, ठीक है, अब जब ग्राउंड पे जो एयर होती है वो बहुत कूल होती है. ठीक है. सो व्हेन इन अ विंटर सीजन यू विल ऑब्जर्व द एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है. ठीक है. एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है. तो वाटर वेपर क्या है? दैट इज अ वार्म एयर. कोल्ड ब्रिज और लैंड ब्रिज आपको बताई थी ना. जब ये वार्म एयर और कूल एयर, ठीक है, ये बहुत तेजी से ये कूल होंगे. वार्म एयर भी कूल होने लगेगी और कूल एयर और ज्यादा कूल होने लगती है. तो ग्राउंड के सरफेस के अगल बगल क्या होता है? द वाटर वेपर व्हेन इट कूल्स इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर. ठीक है. तो ये ग्राउंड से थोड़े से अबव लेवल पे होता है, ग्राउंड से हाई लेवल पे होता है कि जो वाटर की जो ड्रॉप्स हैं, वो जो वाटर वेपर था, क्योंकि यहां क्या बोल रहा है? रैपिडली कूलिंग हो गई वार्म एयर की. ठीक है. इतना ज्यादा ठंड हुई कि एक वार्म एयर की रैपिडली कूलिंग हो गई. तो वार्म एयर जब कूल हुई, इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर. और यही स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ए वाटर हवा में फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है. नियर द ग्राउंड. इसी को क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं. इज इट क्लियर? एंड यू सी दिस फॉग इन द विंटर सीजन. और इसमें होता क्या है? विजिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता. फॉग्स में अगर आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होगे या न्यूज चैनल्स में देखते होगे, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू दिस फॉग.
ओके, सो इसमें क्या होता है, वार्म एयर और मोजिस्ट एयर क्या रैपिडली एकाएक इनकी और ज्यादा कूल हो जाते हैं। तो जब वाटर वेपर चेंज होगा किस फॉर्म में, वो कूल होगा, देन इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर। सो ये जो वाटर के ड्रॉप्स हैं ये एयर में फ्लोट करते रहते हैं, दे स्टे इन द एयर, दे स्टे इन द एयर, एंड दिस इज नोन एज फॉग। और फॉग में व्हेन द विजिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत लेस होती है, वी आर नॉट एबल टू सी द क्लियर पिक्चर। ओके, हमें क्लियरिटी नहीं होती, उतना क्लियर डिस्टेंस से हम नहीं देख सकते। यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू दिस फॉग्स, रोड एक्सीडेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और स्पेशली इन द टाइम व्हेन देयर इज लॉट ऑफ फॉग, maximum you will see buses or train, they all are late in the winter due to this fog। विंटर में आप लोग देखते होगे फॉग के कारण ट्रेन्स के टाइम चेंज हो जाते हैं, ट्रेन्स कैंसिल हो जाती हैं, सारे जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जितनी भी हैं, ठीक है, सो उस पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत लेस हो जाती है, विजिबिलिटी चीजें हमें उतनी इसमें साफ नहीं दिखाई देती। तो आ गया समझ में। देखो वहां पे वाटर वेपर बहुत हाइट पे जाके कूल हुए थे, ठीक है, तब वो वाटर कूल होने के बाद स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ज्वाइन करके क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए, और ऊपर एयर क्या है, कूल है, ठीक है, हाईली कूल होगी, जहां माउंटेन्स रीजन जैसे होगी तो वो फ्रीज भी हो जाएंगे, लेकिन दीज थिंग्स हैपन नियर द ग्राउंड, ठीक है, दीज थिंग्स हैपन नियर द ग्राउंड। और ये जो एयर में वाटर वेपर है, जो वार्म एयर है, वार्म एयर क्या है, वार्म एयर किसकी वजह से, यही है वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, और जो वार्म एयर्स जब रैपिडली कूल हो जाती हैं तो वो किसमें ड्रॉप में चेंज हो गई, वाटर के, लेकिन वाटर के ड्रॉप में चेंज हो गई, लेकिन व्हाट हैपन, कूल है, सो दीज टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टे इन द एयर, ठीक है, ये हवा में ही स्टे हो जाते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं, ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पेज नंबर 74 आ जाओ। अब नाउ दिस फ्रॉस्ट, अब पढ़ेंगे हम लोग फ्रॉस्ट। Frost, what is frost? Now see what is frost। अभी मैंने आप लोग को कुछ देर पहले मैंने आप लोग को ड्यू बताया था, ड्यू बताया था ना, कि ड्यू क्यों आती है, व्हेन द नाइट इज चिल्ड, ठीक है, जब रात में ठंड होती है तो क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो भी तो प्रेजेंट है, तो वो वाटर वेपर किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है, वहां पे वो वाटर वेपर क्या हो जाता है, इट कूल्स एंड इट स्टार्ट चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर, दैट इज व्हाट, दैट इज ड्यू, वो क्या है, ड्यू है। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट हियर व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द फ्रॉस्ट, जो ड्यू होती थी ना, मतलब और ज्यादा नाइट ठंडी हो जाए, मौसम और भी ज्यादा ठंडा हो जाए, जब मौसम, ठीक है, मौसम ठंडा है तो वाटर वेपर कूल हुआ एंड इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर, सो दीज स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर जिसे हमने ड्यू बोला। लेकिन आप देखोगे कि इतना ज्यादा ठंड है, कि इतनी ज्यादा ठंड है कि जो जो स्मॉल स्मॉल जो ड्यू है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो सरफेस पे पड़े, अगर और भी ज्यादा उनकी कूलिंग हो जाती है तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट, हिंदी में कहते हैं पाला पड़ना, ठीक है, एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है, इससे सारे पेड़ खराब हो जाते हैं, जो क्रॉप्स होती है ना, सारी फसलें इससे खराब हो जाती हैं अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, विच इज फ्रॉस्ट। इट इज जस्ट व्हाट, इट इज अ ड्यू, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत लेस हो जाता है,
देन व्हाट्स हैपन, जो ड्यू होते हैं, जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिससे आप देखते हो कि सारा एरिया कवर्ड है, तो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि वो ड्यू जो है इट फ्रीज। ठीक है, अब वो ड्यू जो है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर है, वो इतना ज्यादा ठंडी हो गई कि वो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस, दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट, दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट। ठीक है, व्हेन नाइट बिकम्स वेरी कोल्ड, जब नाइट बिकम वेरी कोल्ड, सो व्हाट्स हैपन, ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज टू फॉर्म आइस। यही बात बताई ना मैंने, जो जब नाइट बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगी, सो जो ड्यू के जो ड्रॉप्स होंगे वो किस फॉर्म में चेंज होंगे, दे चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस, एंड दैट इज नोन एज फ्रॉस्ट, एंड दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, एंड दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। So I explained you hail, snow, dew, fog and frost. Is it clear? Now see student, note down one thing. Note down one thing. Rain, rain, snow, hail and frost falling from clouds is called it. These all are known as precipitation. ठीक है, ऑल दीज आर नोन एज, इन सभी को क्या बोलते हैं, दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज प्रेसिपिटेशन। ओके, रेन है, स्नो है, हेल है, फ्रॉस्ट है, फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। इज इट क्लियर? सो क्या, अब देखो, तुम लोग ये सोचोगे फ्रॉस्ट तो नहीं ऊपर से आ रहा है, सर ने अभी बोला कि ड्यू की बूंदे बहुत कोल्ड होता है, चिल हो जाता है तो जम जाती हैं, इट चेंज व्हेन इट इज वेरी कोल्ड इन द नाइट। लेकिन ये वाटर तो आया ना, ठीक है, वाटर तो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट था, ठीक है, अब एयर में जो प्रेजेंट था वही कूल हुआ था, तो उसी से ड्यू बनी थी ना। अब ड्यू जब नीचे पूरे सरफेस पे पड़ी है और भी टेम्परेचर कोल्ड हो गया, और भी टेम्परेचर कोल्ड हो गया, तो दीज स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या हो गए, फ्रीज हो गए। इससे हम लोग क्या बोले, फ्रॉस्ट का नाम दिए। ठीक है, तो वाटर तो आ रहा है, ऊपर ही से आ रहा है ना, सारा प्रोसेस तो वही हो रही है। नाउ सी, उसके बाद वाटर साइकिल, वाटर साइकिल तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, और वाटर साइकिल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आप लोगों को बताई थी, मैनी टाइम इट कम्स इन द एग्जामिनेशन, ड्रॉ ए वाटर साइकिल। ठीक है, तो स्टूडेंट ड्रॉ द वाटर साइकिल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द केस ऑफ द वाटर साइकिल इज द position of the arrow. If the position of the arrow, you put wrong position of the arrow, then after drawing the whole diagram, even you have done the leveling, but in the end you will get directly 0, because many time student ask to the teacher, sir, we have made all the diagrams and when why you have cut the diagram. So position of the arrow is very important. Is it clear? So due to the sunlight, the water evaporate and it rises up. So this is the first position of the arrow. Then on the top it will go, and there is a process of a condensation. There is a process of, okay, I write it in a neat soft writing में लिखता हूँ। प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर कूल होंगे तो प्रोसेस ऑफ क्या होगी, कंडेंसेशन, process of condensation, and due to this what, clouds are formed, due to this clouds are formed, and in the last, and from where the all water goes up, ground से, ठीक है,
जो वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ पे जितनी वाटर बॉडी प्रेजेंट है वहीं से तो वाटर ऊपर गया, इट फॉर्म द क्लाउड्स एंड फ्रॉम द क्लाउड्स सेम वाटर इज कमिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए रे, स्नो, हेल. सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वाटर जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं. एंड देन फ्रॉम द क्लाउड्स द वाटर कम डाउन. सो whenever you make a diagram of a water cycle in the exam, the position of the arrow should be right. Thank you, student.